So today we are going to discuss regarding the brief introduction of p-n junction. आज हम p-n junction पढ़ेंगे, p-n junction होता क्या है ना? Is my screen visible to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So first of all, energy bands. आपने पढ़ा होगा पहले फिजिक्स के अंदर energy bands क्या होते हैं? बताइए क्या होता है energy band? Anyone? That is the range of energies which are supported by electrons of the same orbit. तो मान लो आपका ये different orbits में electrons होते हैं ना, है ना? तो आपकी कितनी एनर्जी सपोर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स सेम ऑर्बिट में, दैट इज वन एनर्जी बैंड. सो इन योर सेमीकंडक्टर वी आर हैविंग वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड. वैलेंस बैंड का मतलब क्या होता है कि द एनर्जी बैंड व्हिच हैज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज वैलेंस बैंड. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं? जो फ्री है फॉर कंडक्शन. ऐसा होता है. क्या होता है वैलेंस बैंड या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? एनीवन? सर जो इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर होते हैं, जिनके अंदर Yes. इन्फ्लुएंस सबसे कम होता है न्यूक्लियस का. बिल्कुल ठीक. तो जितने फादर होते हैं आपके ऑर्बिट से, न्यूक्लियस से, उतने ही वो इजिली निकल सकते हैं, है ना? जो पास है वो स्ट्रांगली टाइटली बाउंडेड होते हैं. तो वैलेंस बैंड में हमने क्या बताया कि द एनर्जी बैंड व्हिच हैज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज वैलेंस बैंड. एंड रिगार्डिंग कंडक्शन बैंड, द एनर्जी बैंड व्हिच हैज द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज कंडक्शन बैंड. And you have already studied the energy band diagram of the conductor, insulator, and semiconductor. So here in this figure, we have shown the energy band diagrams first for the conductor. In this conductor, you can see the conduction band. CB is the conduction band, VB is the valence band. So the CB and VB, they are just overlapping on one another. So there is no energy gap between the CB and VB. So here we have written that this energy gap, that is Eg, is 0 for the case of conductors. Right now, if I talk about the insulators, so insulators, you all know that they are the poorer conductor. उसमें conduct करता ही नहीं है ना? So here there is a lot of difference from the valence band to conduction band, and this is Eg is of the order of 5 electron volts. What is electron volt? What is 1 electron volt? Anyone? 1.6 into 10 to the power minus 19 joules. राइट. तो ये हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की मींस दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब जब इंसुलेटर्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, दे आर वेरी फार. 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की अप्रोक्सीमेटली हम दिया है यहां पर फॉर द केस ऑफ इंसुलेटर्स. एंड इफ वी टॉक अबाउट द सेमीकंडक्टर्स, वी ऑल नो द सेमीकंडक्टर्स लाइज बिटवीन द कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स. So here you can see in this figure, the energy gap is of the order of 1 to 2 electron volts, which is smaller than that of the insulator and more than that of the conductor. Conductor तो है ही कुछ नहीं, 0 है ना? तो अब यहाँ पर देखो लेफ्ट साइड में हमने क्या लिखा हुआ है? We have written the energy gap for the different types of semiconductor materials. तो आप जो semiconductor material जिसे हमने लिखा ना 1 to 2 electron volts, so it depends upon कि कौन सा semiconductor material आपने यूज किया है. As per that semiconductor material, your energy gap will vary. So for the case of germanium, if you're using a germanium element, then we are having 0.67 electron volt as the energy gap. And if we take a silicon semiconductor, it is of the order of 1.12 electron volts. For the case of gallium arsenide, it's of the order of 1.43 electron volts. So here we have written that these silicon and germanium are the type of single crystal. But if we talk about the gallium arsenide, it is a compound semiconductor. So there are various compound semiconductors also. Is this clear to everyone? Any doubt in this? It's very simple. Valence band you all are aware, conduction band you all are aware. You know the difference between these two. Insulator में कितना होता है, conductors में कितना होता है, semiconductors में कितना होता है, right? And different amount of energy gaps for the different types of semiconductors. This is all. This is in the first slide. Now let's move ahead. Now semiconductors, we have a point of interest. तो semiconductors के अंदर हमने क्या देखना है? That the semiconductors, हाँ जी बोलो. So what is forbidden energy gap? That is energy gap between the conduction band and the your valence band. Okay, sir.
So here there are two types of semiconductors. One is extrinsic semiconductor and another one is intrinsic semiconductor. So when I talk about the term intrinsic semiconductor, it is said to be as a pure semiconductor. प्योर का मतलब क्या है? इसमें कोई भी impurity नहीं है, कोई भी doping नहीं है, कोई भी dopant नहीं है हमारे पास. But whenever we talk about the extrinsic semiconductor, it is said to be as a part of impure semiconductor. Impure का मतलब क्या है? We intentionally add some impurity into it so that its conductivity increases, right? तो यहाँ पर हमारे पास क्या है extrinsic के अंदर? It depends upon the type of dopant that we have added. It is further categorized as which type? P-type semiconductor or N-type semiconductor, right? So अगर आप कोई impurity add करते हो, if it is a trivalent impurity, trivalent का मतलब क्या है? उसकी valency कितनी है? 3. So if from the periodic table, if you choose any element whose valency is 3, and if we are going to use that for impuring it, for doping, then that type of semiconductor which we form is said to be as a p-type semiconductor. And if we choose a pentavalent impurity, so for pentavalent impurity, we said the type of semiconductor is n-type. So it means if I am doping my semiconductor with a with an element whose valency is 5 or pentavalent, right? Then we said that semiconductor is formed as n-type semiconductor. Now, the process of adding this impurity, which makes it extrinsic semiconductor, it do have some electrical properties, right? So the process of adding the impurity to a pure semiconductor is defined as a term doping, जो हमने यूज किया है अभी, है ना? और type of dopants कौन से हैं? Either it is a p-type or it is a n-type. Now let's come to the 2D structure of this n-type and p-type. Now in this figure you can see this is a silicon, right? And this silicon is having 4 outermost electrons. So silicon का आपको पता है silicon की valency कितनी है? 4. So it means इसके जो outermost shell है उसमें कितने electrons है? 4 है, right? So now we are intentionally adding with a pentavalent impurity, right? So when we add the pentavalent impurity, तो क्या हो रहा है? देखो जहां से pentavalent का मतलब क्या है? 5 outermost shell में होंगे. तो हमने ये कौन सा यूज किया? PP stands for phosphorus, right? So इसकी वैलेंसी कितनी है? 5. So एक तो ये हो गया, 2, 3, 4 और ये 5. तो अगर ये पेंटावेलेंट है तो एक इसके पास हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन है किसी को देने के लिए, है ना? तो अगर उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन देने के लिए तो हमको क्या बोलेंगे? इट्स अ डोनर एटम, राइट? और अगर कोई किसी को फ्री नहीं है, हमेशा कुछ कहीं से एक्सेप्ट कर रहा है तो उसको बोलते हैं एक्सेप्टर. तो यहाँ पर देखो जो आपके पास एन टाइप सेमीकंडक्टर का स्ट्रक्चर है उसमें हमारे पास हमेशा एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जो फ्री है, कोई भी यूज कर सकता है उसको, है ना? तो वी कॉल दिस एटम एज अ डोनर एटम. And if it see the structure of this p-type semiconductor where we have introduced this Al, Al stands for, बोलो, एल्यूमिनियम. इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 3. तो 3 वैलेंसी. इसका मतलब क्या है? एक तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, दूसरा यहाँ पर आ गया, तीसरा यहाँ पर आ गया, यहाँ पर एक होल है हमारे पास, है ना? तो इट मींस whenever I am forming a p-type semiconductor, so I have to keep this in mind that I am always having one vacancy available with me, right? So that vacancy कौन fill करेगा? दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा. जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, इट्स फाइन फॉर दैट. बट जहां से इलेक्ट्रॉन आएगा वहां पर वॉइड क्रिएट हो जाएगा. सो इस तरह से हमारी कंडक्शन आगे फ्लो होती रहेगी, है ना? तो इट मींस अगर मैं p-type सेमीकंडक्टर की बात करता हूं तो उसमें क्या हो रहा है? होल्स मूव कर रहे हैं. कैसे मूव कर रहे हैं? कि पहले यहां पर होल था, अब अगले पॉइंट मान लो कहीं और से इलेक्ट्रॉन आ गया, यहां पर आ गया तो यहां होल क्रिएट हो गया, फिर कहीं और से आ गया तो ये फिल होगा, यहां पर होल क्रिएट हो गया. इट मींस holes always want to receive some electron to fill its octet,
एलिमेंट की, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो रहा है कि जब होल मूव कर रहा है तो इट रिजल्ट्स इन द फ्लो ऑफ कैरियर्स एंड इट रिजल्ट्स इन द फ्लो ऑफ करंट। So whenever there is a flow of carriers, either it is a hole or it is an electron, there is always a flow of current. And if we talk about the n type, और n type में हमने क्या देखा कि एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, तो उसको जहां पर भी दिखेगा खाली वो वहां पर जाएगा और स्ट्राइक करेगा उसको और वहां पर उसको फिल कर देगा, फिर वहां से इलेक्ट्रॉन निकल देगा बाहर, वो कहीं और जाएगा आगे। So electrons will keep on moving. So when in n type the electrons move. अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि जो एन टाइप में अगर इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास मूव करें, इसका मतलब क्या इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास एक्स्ट्रा है, तो हम इसमें बोलते हैं एन टाइप में वी आर हैविंग अ मेजॉरिटी कैरियर एज इलेक्ट्रॉन्स। पी टाइप में क्या होगा, होल्स मूव कर रहे हैं तो वी से होल्स आर द मेजॉरिटी कैरियर्स। सो मेजॉरिटी माइनॉरिटी का मतलब क्या है यहाँ पर, मेजॉरिटी का मतलब ये है कि जो बहुत ज्यादा है, माइनॉरिटी का मतलब क्या जो बहुत कम है। ऐसा नहीं कि है ही नहीं, है लेकिन बहुत ही कम है रिलेटिव टू द मेजॉरिटी। So in the p-type semiconductor आपको इस स्लाइड से क्या दिमाग में रखना है कि for p-type carriers the majority p-type semiconductor the majority carriers is hole and minority carrier is electron. This is for the case of p-type semiconductor. हाँ जी मनिंदर पूछो क्या पूछना है। सर इसमें तो सर सिलिकॉन के पास 4 थे, इसलिए वो एक एल्यूमिनियम को डोनेट कर सकता था। सिलिकॉन के सर पास अगर 4 थे सर इलेक्ट्रॉन, तो वो एक एल्यूमिनियम को डोनेट कर सकता था। सर अगर एल्यूमिनियम के साइड में कोई ऐसा हो जिसके पास खुद डेफिशिएंसी हो तो क्या होएगा सर? सी अभी मैंने आपको पीछे स्लाइड में क्या बताया था कि जब आप डोपिंग कर रहे हो पहली बार, अब मैंने डोपिंग सिर्फ ट्राइवेलेंट से करी, अब आपका क्वेश्चन ये है कि मान लो कि आपने ऐसी डोपिंग की वैलेंसी 2 हो, है ना। यस सर। हाँ, तो उस केस में क्या होगा, कनेक्टिविटी उसमें भी होगी लेकिन उसमें कनेक्टिविटी कम होगी क्योंकि वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको रिसीव करने के लिए। तो कहने का मतलब कि इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ डोपेंट दैट यू आर एडिंग। तो जो मैंने यहाँ पर क्लासिफिकेशन बताई आपको एन टाइप और पी टाइप की, इसमें डोपिंग किसकी है, आइदर विद द 3 वैलेंसी 3 और विद वैलेंसी 5। ये हमने 3 और 5 क्यों चूज किया है, क्योंकि ये जो 4 के आसपास ही है, तो इट इज वेरी इजी टू आइदर डोनेट 1 और टू रिसीव 1। बट अगर आप डोप करोगे मान लो 2 से, और यहाँ पर आपका जो सिलिकॉन है बीच में है ना, तो यहाँ पर इस बार 12 को 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी कनेक्टिविटी कैसे होगी उसके बारे में कोई अभी स्टडी डिटेल्स में नहीं है कि कितनी अच्छी कनेक्टिविटी होगी या कितनी बेकार कनेक्टिविटी होगी। बट डेफिनेटली ऑक्टेट पूरी करने के लिए उसको 2 चाहिए हमें। तो अभी जो सा हमारे पास एन टाइप बी टाइप में, उसमें यूनिफॉर्मली होगा कि आपने अगर ट्राइवेलेंट डाला तो ट्राइवेलेंट होगा, उसके लेफ्ट राइट में जो सा 2 वाला नहीं होगा, which were not forming a compound। compound सबसे जो होता है ना, जो मैंने आपको पीछे बताया था, let me go back this it। तो जो आपका ये कंपाउंड सेमीकंडक्टर है जिसमें गैलियम आर्सेनाइड डाला हुआ है, राइट, कैडमियम सल्फाइड डाला हुआ है, इस तरह से जो कंपाउंड सेमीकंडक्टर होता है उसके अंदर आपका मिक्सचर वाला फॉर्म होता है। बट जनरली जो हम ये एन टाइप और पी टाइप आपको पढ़ा रहे हैं, सिंगल क्रिस्टल वाले पे बात कर रहे हैं हम, जिसके अंदर एक ही हमने डाला हुआ है। क्लियर है मनिंदर? ओके सर। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो मेजॉरिटी कैरियर है होल है, माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन किसके कैसे पी टाइप में, और एन टाइप में हमारे पास क्या है, इसका उल्टा है। मींस एन टाइप में मेजॉरिटी में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, और माइनॉरिटी में हमारे पास होल्स है फॉर द केस ऑफ एन टाइप। क्लियर है ये स्लाइड? चले आगे। यस सर। अब इसमें देखो एक चीज और आपने पूछी नहीं मेरे से अभी कि सर जो हम डोपिंग करते हैं, आपने कहा डोपिंग तो हम इम्प्योरिटी डाल रहे हैं उसके अंदर, है ना, पर इम्प्योरिटी कितनी डालें, क्या उसकी कोई लिमिटेशन है? तो यहाँ पर हम जो कहते हैं कि जो रेट है, देखो नीचे लिखा हुआ है रेट ऑफ डोपिंग विद 1 एटम ऑफ इम्प्योरिटी टू 10⁻⁶ टू 10⁻10। क्या मतलब है इसका कि अगर आपके पास मान लो 10⁻⁶ सिलिकॉन के एटम्स हैं, तो उसके अंदर आप सिर्फ 1 डाल रहे हो, 1 एटम। इतनी स्मॉल सी इम्प्योरिटी कर रही है, ये नहीं कि बिल्कुल इसको इम्प्योर करता है, नहीं। सो वी आर एडिंग the very small proportion of doping। so rate जो आपका लिखा है देखो 1:10⁻⁶ का ऑर्डर होता है। it can be 1:10⁻⁶ और 1:10⁸। तो it's a very very small doping। क्लियर होगा ये? तो आपको ये दिमाग में होना चाहिए कि डोपिंग कौन सी होती है, वो किस रेट की होती है।
So that is of the order of 1:6 to 1:8. Clear? Any doubt in this? चलें आगे? यस सर। Okay. अब देखो आगे क्या है यहाँ पर वही चीज हमने बना रखी है, सिर्फ फर्क क्या है यहाँ पर आप एन टाइप और पी टाइप के बारे में बात करें। पहले हमने जो देखा था एनर्जी बैंड डायग्राम, तो वो हमने देखा था सिंपल से सेमीकंडक्टर का, इसमें हमने कहा था कि जो वैलेंस बैंड है और जो कंडक्शन बैंड है उसके बीच में जो एनर्जी गैप है दैट इज 1 to 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। नाउ हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड द पी टाइप सेमीकंडक्टर, देयर एनर्जी बैंड डायग्राम। तो अभी हमने क्या देखा था पीछे प्रीवियस स्लाइड में कि जो हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर था, उस एन टाइप सेमीकंडक्टर में हमारे पास मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हमेशा एक फ्रीली अवेलेबल है ना। तो इट मींस जब भी मुझे चाहिए आई कैन वेरी इजीली गेट दैट इलेक्ट्रॉन, राइट। तो यहाँ पर देखो इसमें हमने क्या शो किया है कि जो ये आपका कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंस बैंड है, हमने कंडक्शन बैंड के जस्ट थोड़ा सा नीचे इस लेवल के ऊपर एक बैंड बनाया, इसको हमने क्या लिखा है, ईडी। ईडी स्टैंड्स फॉर एनर्जी लेवल ऑफ डोनर एटम। तो जो आपका इलेक्ट्रॉन फ्री अवेलेबल है हमारे पास, क्यों होगी वो एक्स्ट्रा है हमारे स्ट्रक्चर के अंदर, तो उसका जो एनर्जी लेवल है वो कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे ही होगा। इट मींस कि विद जस्ट स्मॉल इग्निशन वो आपका अवेलेबल है फॉर द कंडक्शन, राइट। नाउ इफ आई टॉक अबाउट फॉर द पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप पे क्या है, हमने देखा था कि फॉर द पी टाइप वी आर हैविंग होल्स इन अबंडेंस, तो वहां पर हमारे पास ऑलरेडी एक वैकेंसी है ना, तो उसको फिल करना है। तो इट मींस इट इज एक्सेप्टर। तो यहाँ पर जो सा है द माई वन लेवल इज डिफाइंड एज EA. EA stands for here energy level for the acceptor atom, and it is just above the valence. अब एक चीज बताओ, जो ये EG मैंने लिखा हुआ है, जैसे EG 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा, इसका EG का मतलब क्या था, हमने ये डिस्कस किया नहीं डिस्कस किया? हमने तो सिंपल लिखा कि EG इज एनर्जी गैप। इसका मतलब क्या, अगर मान लो मैंने कहा कि एनर्जी गैप इज 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैन यू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? सर इसका मतलब है कि वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी चाहिए होगी कंडक्शन बैंड में जाने के लिए। वेरी गुड। सो इट मींस एनर्जी गैप क्या बता रहा है कि आपको अगर एक इलेक्ट्रॉन को पिक करना है फ्रॉम द वैलेंस बैंड एंड यू वांट टू बी इन कंडक्शन बैंड, तो कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी या कितनी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को चाहिए, है ना। तो यहाँ पर देखो क्या है कि जैसे ही आपने यहाँ पर पी टाइप डाली तो आपका एक्सेप्टर आयन यहाँ ऊपर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इन कंपैरिजन टू प्योर सेमीकंडक्टर where we require this much energy to excite an electron, now we require this much. Similarly, if I talk about this here, initially it requires this much of energy for the pure semiconductor, but now we require this much of energy. So it means क्या हुआ कि जब मैं डोपिंग कर रहा हूं, चाहे मैं पी टाइप से कर रहा हूं चाहे मैं एन टाइप से कर रहा हूं, मेरा जो डिफरेंस है, जो रिक्वायर्ड एनर्जी है कि मेरा कंडक्शन में इलेक्ट्रॉन आ जाए, वो मेरी somewhat reduce होगी। Is it clear to everyone? Any doubt in this? Please ask. So energy band diagram of your p type और n type. यहाँ पर एक वर्ड हमने हाँ ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड लिखा है एक्सटेंसिव, को पता है कि दोनों आपके क्या है, पी टाइप एन टाइप क्या है, these are extensive सेमीकंडक्टर। एक्सटेंसिव का मतलब क्या है, इम्प्योर। इंट्रिंसिक का मतलब क्या था, प्योर। तो प्योर वाले केस में वही है। हाँ जी कृष्णम गुप्ता पूछो। सर जब हम बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर या एन टाइप, तो वो ऑटोमेटिकली एक्सट्रिंसिक हो गया ना, क्योंकि Yes. हमने एक्सट्रिंसिक में ऐड करके बनाया उसे। यस यस, ये देखो मैंने पीछे यहाँ बताया था ना कि जो आपका सेमीकंडक्टर है इसमें दो पार्ट है, एक एक्सट्रिंसिक का है एक इंट्रिंसिक का है। एक्सट्रिंसिक कौन सा है, जिसमें हम इम्प्योरिटी डाल रहे हैं, तो इट विल मेक आइदर पी टाइप और एन टाइप। सो बोथ पी टाइप एंड एन टाइप आर द कैटेगरी ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ओके गॉट इट? चलो अब ये तो हो गया आपका पीएन जंक्शन के बारे में, पीएन के बारे में। अब आए थे सेमीकंडक्टर डायोड के ऊपर आ जाते हैं। तो अब देखो ये हमारे पास क्या बना हुआ नीचे बॉक्स में कि एक तरफ आपके पास पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ठीक है, एक तरफ आपके पास एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो पी टाइप में आपको पता है कि मेजॉरिटी में होल्स हैं, एन टाइप में मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास। तो क्या होगा कि जब हम इनको आपस में लेके जाएंगे पास, तो यहाँ पर होल्स मेजॉरिटी में, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में, तो क्या होगा, ड्यू टू concentration gradient
the carriers will move to the other side of the junction. So means holes P से N पे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन N से P की तरफ आएंगे. जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था डिफ्यूजन का, कि जब परफ्यूम आप स्प्रे करोगे तो पूरे रूम में स्प्रे आ जाएगा, है ना, उसमें स्मेल आ जाएगी, पहले कोई स्मेल नहीं थी बॉक्स के अंदर. तो सिमिलरली हियर आल्सो, तो अब जब ये मूव कर रहे हैं तो क्या होगा, बीच में एक लेयर बन जाएगी जिसको हम बोलते हैं डिप्लीशन रीजन, जिसके अंदर क्या होता है, वी गॉट इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स और इमोबाइल आयंस. Immobile ions, they are very in the depletion region, right? अब ये depletion region क्या करेगी, it will further oppose the flow of carriers. अब जो carriers freely पहले move कर रहे थे due to the concentration gradient, अब जब एक स्टेज आगे की हाँ डिफ्यूज हो गए carriers, अब further किसी को मैं अलाउ नहीं करूंगा, तो वो मैंने क्या कर दिया, उसके अंदर ऑटोमेटिकली एक EH पेयर बन गया जो हमारे पास फर्दर फ्लो को स्टॉप कर रहा है. ठीक है, तो अब ये हमने कोई भी बायसिंग नहीं लगाई है, कोई भी बैटरी नहीं लगाई, कोई भी हमें सप्लाई नहीं दी है, बिना सप्लाई के ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हमारी डिफ्यूजन प्रोसेस हो गया. ठीक है, अब यहां से होल्स गए, यहां से इलेक्ट्रॉन्स गए, तो जब होल्स और इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, हमने क्या बोला था, देयर विल बी अ फ्लो ऑफ करंट, है ना, जब भी कैरियर्स फ्लो करते हैं. लेकिन यहाँ पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर से जा रहा है, होल यहाँ से जा रहा है, तो यहाँ पर दे आर गोइंग टू काउंटर बैलेंस देयर इंपैक्ट. तो नेट करंट जो होगा हमारे पास, वो देखो यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ है इन द सिंबल, ID is equal to 0 milliampere and BD is equal to 0 volts. So जब हम बायसिंग नहीं करें, विद नो बायसिंग, my VD is 0 volts, ID is 0 milliampere. So the region of uncovered positive and negative ions is known as depletion region, or also known as space charge region भी बोलते हैं इसके अंदर, as it is deprived of the free charge carriers in the region. क्योंकि हमने यहाँ पर क्या लिखा वर्ड, immobile. तो जो डिप्लीशन रीजन के अंदर जितने भी कैरियर्स हैं, कोई भी कैरियर फ्रीली अवेलेबल नहीं है, दैट इज इमोबाइल. ठीक है, तो वो जो लेयर है हमारी फॉर्म होगी, जिसको हम स्पेस चार्ज रीजन बोलते हैं या डिप्लीशन रीजन बोलते हैं, ये मेरे फर्दर कैरियर्स को स्टॉप कर रही है, उसको मूवमेंट को अलाउ नहीं करने दे रही. अब मुझे अगर चाहना है कि मैंने इसको मूवमेंट करवानी है, आई नीड टू अप्लाई द बायस. इज इट क्लियर यहां तक? किसको डाउट तो बताओ मुझे. चले आगे. Yes, sir. Yes, sir. तो हमने अभी अब क्या किया, हमने वही पी एन डायोड था पहले वाला जिसमें हमने पूरी बायसिंग लगाई थी. अब हमने यहाँ पर एक बायसिंग वोल्टेज लगा दी विद सम रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस? एज द नेम सेज करंट लिमिट. तो ये करंट को लिमिट कर रही है. लिमिट का मतलब क्या है, इसको एक वैल्यू तक मेंटेन रख रही है कि ऐसा ना हो कि बहुत हैवी करंट आ जाए या बहुत कम आए, एक वैल्यू तक लिमिट रख रही है. डिपेंडिंग ऑन दैट आई एम चूजिंग अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर एंड आई एम अप्लाइंग अ वोल्टेज VD in such a way that negative terminal of the battery is connected to the P side and positive terminal of the battery connected to the N side. तो अब क्या होगा यहाँ पर कि जब P की तरफ मैं नेगेटिव लगा रहा हूँ और यहाँ पर N की तरफ मैं पॉजिटिव लगा रहा हूँ, तो क्या होगा, जितने भी हमारे पास कैरियर्स हैं, जैसे यहाँ पर नेगेटिव है, तो नेगेटिव का मतलब क्या है, यहाँ पर जितने भी होल्स हैं वो सारे इस तरफ आ जाएंगे, और यहाँ पर पॉजिटिव लगाया मैंने तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सारे आ जाएंगे. क्यों? बिकॉज़ दे ट्राई टू अट्रैक्ट ईच अदर. आपको पता है ऑपोजिट चार्जेस ट्राई टू अट्रैक्ट ईच अदर, है ना. तो जब मैंने यहाँ पर नेगेटिव लगाया बैटरी का, तो यहाँ पर नेगेटिव वोल्टेज आ गया. बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव वोल्टेज मोस्ट ऑफ द होल्स विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस साइड ऑफ द जंक्शन, यहाँ पर नहीं आएंगे आगे. सिमिलरली यहाँ पर पॉजिटिव लगाया तो यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे जो हमारे अबंडेंस में एन टाइप में. यहाँ पर होल्स अबंडेंस में तो होल्स यहाँ पर. इट मींस it will not allow any carrier to go from P to N side. So it means अब जो हमारे पास मेजॉरिटी कैरियर्स थे P में या N में, वो सारे के सारे हमारे इस साइड पे आ गए. तो इट मींस देयर विल नॉट बी एनी फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू द मेजॉरिटी कैरियर्स. बट इफ आई टॉक अबाउट द माइनॉरिटी कैरियर्स, तो यहाँ पर P टाइप के अंदर हमारे पास माइनॉरिटी में क्या है, ये देखो इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं 2-3, और यहाँ पर N टाइप में माइनॉरिटी में क्या है, ये होल्स पड़े हुए हैं. अब जब मैं यहाँ पर रिवर्स में लगाऊं तो ये तो नेगेटिव सप्लाई है, ये क्या करेगी, इस इलेक्ट्रॉन को अपोज करेगी, इसको पुश करेगी, ड्रिफ्ट करेगी.
तो यहाँ से ही हमारा इलेक्ट्रॉन जो माइनॉरिटी में था वो यहाँ से यहाँ पर चल जाएगा जंप करके। सिमिलरली यहाँ से पॉजिटिव से होल यहाँ पे निकल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं रिवर्स बायस कर रहा हूँ तो जो मेरे मेजॉरिटी कैरियर्स है वो तो कुछ भी रोल नहीं प्ले करे, वो तो सिर्फ एक तरफ आगे बैठ गए और उसकी वजह से कुछ भी करंट फ्लो नहीं हो रहा। लेकिन जो माइनॉरिटी कैरियर्स है वो मेरे पुश हो रहे हैं, उनको एनर्जी मिल रही है, वो दूसरी तरफ जा पा रहे हैं। सो हियर when I'm applying a reverse bias, there is only the current that is due to the flow of minority carriers, जिसको हम बोलते हैं IS और रिवर्स लीकेज करंट। ठीक है, तो आपका जो ये IS है, यहाँ लिखा हुआ है IS, this IS is due to the current due to the minority carriers flow and due to the majority current is zero। तो अगर मैं यहाँ पर एक ये जो सिंबल बनाया है, this symbol is for the diode where this side is P and this side is N। तो जो ये लाइन लगी हुई है, ये लाइन एक्चुअल में क्या है, अगर आप लैब में जब आओगे दिखाएंगे आपको, एक रिंग लगी होती है उसके आगे। तो इसका हमने टॉप व्यू लिए, तो देखा हमने यहाँ पर आपका रिंग को एक लाइन की तरह रिप्रेजेंट किया। तो जो रिंग होती है वो सिल्वर कलर की होती है। तो आप जब देखोगे डायोड तो इट्स लाइक अ सिलेंडर। ठीक है, तो अब एक तरफ उसका रिंग लगी हुई है, तो जो रिंग वाली सिल्वर साइड है उसको बोलते हैं एन साइड, दूसरा आपका पी साइड। सो व्हेन यू कम हियर वी विल गिव यू सम एक्टिविटी इन द लेक्चर आल्सो, कि डायोड के बेसिस के ऊपर आप जो सुना देंगे, फिर हम आपको एक्टिविटी देंगे कि जो आपने क्लास के अंदर ही करनी होगी। तो आपको बताएंगे डायोड कैसे यूज करना है आपने। ठीक है, उसमें दिखाएंगे आपको। तो ये आपका पी और एन है। तो यहाँ पर क्या है, देखो हमने ये रिवर्स बायस किया, तो रिवर्स बायस करते ही हमने क्या बोला, दैट आईडी दैट इज अ ओवरऑल ड्रेन करंट आइडली इज जीरो। आईडी का मतलब क्या होता है, परफेक्टली आइडियल कि अगर मैंने रिवर्स बायस किया तो कुछ भी करंट फ्लो कर रहा है, तो आपका जो ये डायोड है ये क्या एक्ट कर रहा है, इट एक्ट्स एज अ ओपन स्विच। ओपन स्विच का मतलब क्या है कि P से कुछ भी सिग्नल N पे नहीं जा पा रहा, ना N से कुछ P पे आ पा रहा है। सो दिस इज लाइक ओपन स्विच, राइट। एंड in your reverse bias we generally say that its width of the dipletion region gets increased, और आइडियली हम कहते हैं कि there is a infinite impedance from the P to N side। इनफाइनाइट इंपीडेंस का मतलब क्या होता है कि अगर मैं यहां से जा रहा हूं मान लो, और आगे रास्ता ब्रेक हो गया, तो यहां से यहां तक पहुंच नहीं पा रहा मैं, तो इसका मतलब कि इन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस कितनी होगी, वो जनरली से इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या है, इट इज नॉट फर्दरिंग अलाउइंग एनी करंट टू फ्लो। हाँ जी सहज बोलो बच्चे। सर आईडी हमने यहाँ पे 0 लिया है, बट सर जो माइनॉरिटी की वजह से करंट है वो हम नेग्लिजिबल ले रहे हैं। बिल्कुल, जो माइनॉरिटी की वजह से करंट होता है IS जो होता है दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर्स और नैनो एम्पियर्स, दैट इज 10⁻⁻⁶ ऑफ एम्पियर और 10⁻⁹ ऑफ एम्पियर, ये इससे भी कम होता है। तो आइडली जब हम बात करते हैं ना, आइडली का मतलब क्या है, यहाँ पर प्रैक्टिकली तो होता है डेफिनेटली, आप जब एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको दिखेगा प्रैक्टिकली आ रहा है, तो करंट आ रहा है। लेकिन आइडली जब हम कहते हैं तो आइडली का मतलब क्या है, या तो करंट आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर करंट कर रहा है तो करंट आ रहा है, नहीं करंट कर रहा है तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा, माइनॉरिटी है ही नहीं कुछ। ओके ठीक है, तो जब हम प्रैक्टिकली एप्लीकेशन यूज करते हैं तो हम कहते हैं जनरली, जैसे हम कोई सर्किट बना रहे हैं, कल क्लिपर्स का देखा था करके, तो हम कहते हैं कि आपका अगर डायोड ऑन है तो वो रेजिस्टेंस 0 है, ऑफ है तो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, ओपन स्विच है, तो आइदर इट इज ओपन और शॉर्ट। ओके सर। ओके, तो ये आपके पास होगा कि इनफाइनाइट इंपीडेंस कर रहा है फॉर द रिवर्स बायस कंडीशन। यहां तक क्लियर है? चले आगे किसी को डाउट यहां तक कोई? No, sir. ओके, Yes. नाउ फर्दर आ गया फॉरवर्ड बायस कंडीशन। अब फॉरवर्ड बायस कंडीशन का मतलब क्या है कि जो हमने वोल्टेज लगाई है वो पॉजिटिव वोल्टेज लगाई। पॉजिटिव किस तरह से कि जो हमारे पास ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल था वो हमने लगाया P पे, और नेगेटिव टर्मिनल हमने कहाँ लगाया, टुवर्ड्स N साइड। अब क्या होगा, जो ये हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल लगाया बैटरी का यहाँ पर हमने, तो ये पॉजिटिव वोल्टेज क्या करेगी, यहाँ पर जितने भी होल्स थे जो मेजॉरिटी में है उनको पुश करेगी, भी जाओ तुम वहां पर जाओ। इधर से इलेक्ट्रॉन जोन से है वो पुश होंगे फ्रॉम दिस नेगेटिव सप्लाई। तो रिजल्ट क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इजीली जा पा रहे हैं, यहाँ से होल इजीली जा सकते हैं। तो अगर मैं इजीली जा पा रहा हूँ इसका मतलब क्या है कि आई एम एबल टू क्रॉस द बैरियर वेरी इजीली, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, देयर इज अ वेरी थिन लेयर ऑफ डिप्लीशन रीजन। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं फॉरवर्ड बायसिंग कर रहा हूं तो इन दैट केस my majority carriers are flowing and my current is due to the flow of majority carriers, right, and that is of the order of milliamperes, and
If I talk about the minority current now, the minority current is almost 0. So there is no flow of minority. क्यों? क्योंकि जब मैं नेगेटिव यहाँ वोल्टेज लगा रहा हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, मिनोरिटी भी इधर क्या है, होल्स है, वो तो यहाँ पर आ जाएंगे सारे के सारे, देखो यहाँ पर होल्स आ रखे, और यहाँ पर पॉजिटिव लगाया तो यहाँ पर मिनोरिटी कौन सी है, इलेक्ट्रॉन है, वो यहाँ पर आ गए। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब फॉरवर्ड बायसिंग कर रहा हूँ तो लीकेज करंट तो है ही नहीं मेरे पास, रिवर्स करंट तो है ही नहीं, क्योंकि रिवर्स तो कर रहे हैं, फॉरवर्ड बायस कर रहा हूँ, तो देयर इज नो फ्लो ऑफ current due to the minority carriers. There is only a majority carrier current. And ideally we say that when your diode is in conduction, so it acts as a closed switch. तो ये आपका स्विच क्लोज है, यहाँ पे देखो ये बनाया हुआ है कि स्विच क्लोज किस तरह कर रहा है, कि कब, जब आपने डायोड को फॉरवर्ड बायस किया, एंड इन दिस केस the width of the distribution region is decreased as applied voltage across the diode increase. तो जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते जाओगे 1 volt, 2 volt, 3 volt, 4 volt, 5 volt, 7 volt, 10 volt, so you will found that the width keep on decreasing. इसका हमारे पास लैब में एक्सपेरिमेंट भी है, किसने किया होगा या भी करोगे आप। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ये है आपके पास पीएन डायोड के कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करना। तो आप देखोगे आप जब फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ा रहे हो तो करंट कितना आ रहा है, सिमिलरली रिवर्स वोल्टेज दे रहे हो तो करंट कितना आ रहा है, and then you need to make a plot showing the characteristics of the PN diode. Is it clear to everyone? Any doubt in this slide, please ask. Clear है ये सब? चले आगे। Yes. Yes, sir. Yes, sir. अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, एक इक्वेशन है, ये आपने पढ़ी होगी पहले शायद, शॉकलेस इक्वेशन। अब जो भी हमने यहाँ पर पढ़ा पीछे, उसमें हमने क्या किया था, हमने फॉरवर्ड वोल्टेज लगाई, फॉरवर्ड बायसिंग की या रिवर्स बायसिंग की या नो बायसिंग करी। तो हमने बेस्ड अपॉन दिस हमने एक वी कैन मेक अ ग्राफ शोइंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पीएन डायोड, है ना। लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ये तो आपका एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है कि आपने एक्सपेरिमेंट में इतनी वोल्टेज दी, कितना करंट आया, फिर एक वोल्टेज दी, फिर कितना करंट आया। सो यू नीड टू मेक अ टेबल फॉर दैट एंड देन यू नीड टू फॉर्म अ कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर दैट। बट if suppose you are not having any apparatus for that, how you compute it? So that mathematically you can compute the amount of diode current that is flowing across the diode with the help of the equation which is known as Shockley's equation. अब ये Shockley's equation क्या होती है चेक करो। ये हमारे पास जो इक्वेशन है इसका जनरली हमारा एक न्यूमेरिकल बन जाता है कि ये Shockley इक्वेशन क्या कर रही है, इट इज सपोर्टिंग टू कंप्यूट द डायोड करंट ID, and it is written as ID is equal to IS exponentially power VD upon NVT minus 1. This is your Shockley equation. अब इसमें ID क्या है, ID is the amount of diode current which is flowing across the diode, and this is of the order of milliamperes. IS क्या है जो हमने निकाला था, रिवर्स लीकेज करंट है ना। सो रिवर्स सैचुरेशन करंट बोलते हैं, it may be in picoampere or microampere or nanoampere, कुछ भी हो सकता है हमारे पास, it's very small. VD हमारे पास क्या है, the voltage across the diode, this value is in volts. N stands for ideality factor, it may be 1 or 2, right? If it is not given N क्या है, so you can take it N as 1. It's written. If N is not given in your numerical, then you can assume N to be 1. You can write that I am assuming N to be 1. So N can either value 1 or it can be 2. VT is the thermal voltage. And VT कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, KT upon Q. ये हमारे पास क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, which is 1.38 in 10 to the minus 23 joules per Kelvin. T is the temperature in kelvins. So if you given say 20 degrees centigrade, so you need to convert that centigrade into kelvins first by adding 273 to it. So 273 plus 27 जो भी आपको क्या आएगा निकाल सकते हो, and Q is the charge of electron. तो अब आपने करना क्या है, जब हम इसको KT by Q निकालते हैं VT, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं by writing 1.38 into minus 23 into temperature divided with this charge, so I will get the value 26 millivolts at room temperature. तो अगर आपको न्यूमेरिकल में गिवन है कि at room temperature compute the diode current
for the applied voltage say 2 volts, then you can use straight away this VT as 26 millivolts. No need to compute KT by Q over there. Just save your time, right? But अगर वहां पर given है नहीं at this temperature, मान लो मैंने कहा नहीं मेरे को निकालना है कि at 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बताओ भी कितना आईडी आ रहा है, तो in that case you have to convert this 100 degree centigrade into first kelvins by adding 273 to it, so making it 373 kelvins, and then compute this VT for this first. So अगर न्यूमेरिकल में आपको गिवन है कि हाँ जी आपको इस वैल्यू पे आईडी निकालना है, तो for that you need to compute the VT first. Once you compute the VT, then for the given VD and take n as 1, compute the ID. So what is the meaning of n? N is the ideality factor basically. Its value is generally taken as 1. If it is not given, if it is given, basically क्या है, ये एक तरह का ना आपका इंटीजर है जो हमने इसमें डाला हुआ है शॉकर इक्वेशन में अंदर, ताकि it should able to match with the practical characteristics. तो आपका जो ये characteristics हमने बनाया ना ये वाला, इस characteristics के साथ मैच करने के साथ ये मॉडल बनाया गया शॉकर इक्वेशन का, जो n हमारे पास क्या है, it can be either 1 or 2, it cannot be having more value. अगर ज्यादा होगा तो आपका जो रिजल्ट है वो इसके साथ मैच नहीं कर पाएगा. तो जो शॉकर ने इक्वेशन बताई, तो उसने ये इक्वेशन बताई कि it will make your मैचिंग ऑफ द डायोड करंट, यहाँ पर आईडी है वर्सेस VT. तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते हो 0.1 0.2, तो आपने देखा होगा अभी आगे आएगा 0.7 के आसपास जाके आपका कंडक्शन स्टार्ट होती है सिलिकॉन केस में. तो 0.7 आपका ऐसे जा रहा है एंड देन इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग. द मोमेंट यू कीप ऑन इंक्रीजिंग द वोल्टेज, यू विल गेट द मोर अमाउंट ऑफ करंट इन मिलीएम्पियर्स. So VD external voltage across diode है ना? यस. और सर रिवर्स सैचुरेशन करंट मतलब रिवर्स में जो माइनॉरिटी कैरियर्स यस यस, वो कब होगा, इस साइड पे होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में. तो यहाँ पर हम नीचे जो आपका आएगा वो IS आएगा इन माइक्रोएम्पियर्स. तो आप जब लैब में आओगे ना, तो लैब में आपको वो बताएंगे कि लैब में आपने जब इसकी प्लॉटिंग करनी है तो इस तरह से प्लॉट करोगे कि जो ऊपर वाला पोर्शन है वो मिलीएम्पियर में आएगा, नीचे वाला माइक्रोएम्पियर में आएगा या नैनोएम्पियर में आएगा. तो वो आप देखोगे स्टार्टिंग में आपका -1 वोल्ट दिया तो somewhere 200 पिको एम्पियर के आसपास आ रहा है, फिर धीरे नैनो हुआ, फिर माइक्रो हुआ जाके. सो इट्स वेरी वेरी स्मॉल इन कंपेयर टू मिलीएम्पियर. क्लियर है? यस इसका एक न्यूमेरिकल करें. Yes, sir. एक मिनट होल्ड करो. Write down. The current flowing through a PN diode at room temperature when it is reverse biased is 0.15 microampere. So can you please repeat? Yes, the current flowing through a PN diode when it is reverse biased at room temperature, its value is 0.15 microampere. Determine the current flowing through the diode when the applied voltage is 0.12 volts. Sir, this what's question, the value of voltage? applied voltage is 0.12 volts. This is the applied voltage, this is the current. तो अब इस न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है आपको, ये 0.15 क्या है ये चीज,
IS. IS, तो आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि रिवर्स बायस करंट है, ये आपको IS है, तो IS आपको गिवन है। फिर वो क्या बोल रहा है कि आपको डायोड का करंट निकालना है कब, अगर मेरे पास अप्लाइड वोल्टेज 0.12 वोल्ट्स है और उसने बोला कि साथ में रूम टेम्परेचर, और इसने कुछ नहीं बोला ना एन के बारे में कुछ बात की, तो बाय डिफॉल्ट अगर कुछ नहीं मेंशन तो आपने एन क्या लेना है, 1 लेना है। तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ID इज इक्वल टू IS कितना है 0.15 माइक्रो एम्पियर, ब्रैकेट में e रेज़ टू पावर VD, VD कितना है 0.12 डिवाइडेड विद, अब NVT, n क्या लोगे 1 क्योंकि कुछ गिवन नहीं है। VT कितना होगा, रूम टेम्परेचर पे कितना VT निकाला था हमने 26 मिलीवोल्ट, तो ये 26 मिलीवोल्ट हो जाएगा इनटू 10 माइनस 3 ना, पूरा दिस -1, इसको सॉल्व कर लो कितना आता है पावर। अच्छा एक चीज और, आपके पूरी डिग्री के अंदर यू कैन यूज योर साइंटिफिक कैलकुलेटर्स इन योर एग्जाम्स आल्सो, ठीक है। तो जिनके पास नहीं है साइंटिफिक कैलकुलेटर्स वो ले लेना, तो जब आप यहाँ पर आओगे तो ट्यूट्स में आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको चाहिए होगा। बताओ कितना आंसर आया इसका। चलो एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन और लिखो, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। राइट डाउन वन मोर प्रॉब्लम फॉर दिस Shockley इक्वेशन। A silicon diode has reverse saturation current. A silicon diode has reverse saturation current of 2.5 microampere 2.5 microampere at 300 degree kelvins. I again repeat, a silicon diode has the reverse saturation current of 2.5 microampere at 300 degree kelvins. Find forward voltage. Find forward voltage for a forward current of 10 milliampere. I again repeat the last time. Find the forward voltage for a forward current of 10 milliamperes. क्लियर है? So let's stop now because अभी next क्लास का टाइम हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन हम, डाउट है। हाँ बोलो नमन बोलो। सर ये जो हमने इक्वेशन जो हमने फॉर्मूला लिया है उसमें हमने जो बोला है कि रूम टेम्परेचर पे 26 मिलीवोल्ट्स है, ये रूम टेम्परेचर हम क्या अज्यूम कर रहे हैं? आप बताओ कितना होता है रूम टेम्परेचर? हाँ जी 25 डिग्री। 25. ओके सर। अगर मान लो आपको Can you नहीं भी पता, सपोज करो, तो आप क्या निकाल सकते हो इससे, इसी फॉर्मूले से, जस्ट पुट के टी बाय क्यू। आपको पता है 26 मिनट आया क्यों नहीं आया? यस अगर आपको माइंड में 25 है कि 27 है, कितना है ना, यू कैन पुट द वैल्यू एंड गेट चेक्ड। ओके। Can I इस लेक्चर्स की स्लाइड्स कहाँ पे मिलेंगी सर? सब कुछ मिल जाएगा बच्चे आपको, ये LMS के ऊपर डालूंगा मैं अभी लिंक ना, या मैं अभी आपको GR का नंबर लिया ना, मोबाइल नंबर मैंने, मैं GRs को मेल कर दूंगा एक गूगल ड्राइव का लिंक, जिसके अंदर मैं अपने जो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं जो आपकी PPT है सब शेयर कर दूंगा, ठीक है। Okay, sir. एंड यू कैन Sir- एक्सेस ओनली वाया योर थापर आईडी, नॉट वाया अदर्स। ओके सर। सर वो आपके लेक्चर में नोट्स बनाने सर डिफिकल्ट होते हैं, आपकी स्पीड थोड़ी ज्यादा है इसीलिए। कोई इशू नहीं है यार, रिकॉर्डिंग सब कुछ आपके पास पड़ा हुआ है, PPT आपके पास पड़ी हुई है। अब इसमें ठीक बहुत है, स्लो चल रहा thank हूँ you, यार, sir. आप तो फास्ट Sir- हुए नहीं। Sir, is the answer of previous question is 187.41 microampere? नो इट्स रॉन्ग। चलो नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। निकालना टाइम हो गया आपकी नेक्स्ट क्लास का, ठीक है। सर आप प्लीज LMS पे भी अपलोड कर दीजिएगा। हाँ कर दूंगा, एक्चुअली LMS के ऊपर ना मेरा अभी वो मैंने ET का ट्रेस की हुई है, मेरा अभी इसमें शो नहीं करा स्प्लिट, जैसे आएगा उसमें भी डालूंगा पहले ही में। ओके Sir, is it 14.7? चलो लेट्स लीव इट
We will discuss it in the next class. ठीक है? Sir, one question. Like I was a bit late in the class, like because of my internet issues. Did you take the attendance, sir? No, Okay. I will not take any attendance. Okay. Okay. And so the second thing is, what was the Kelvin value, sir? The temperature. What was that? Again, the Kelvin value, like for the question you gave at the end. That is Can you repeat the last question? last question में reverse saturation current 2.5 microampere at Yes, 300 sir. degree Kelvin. 300. Okay, sir. Thank you, And- sir. Can you please repeat the question? Yes, reverse saturation current of 2.5 microampere at 300 degree Kelvin, and you have to calculate the forward voltage for a forward current of 10 milliamperes. ठीक है? So I'm just winding up now meeting because it's time for the next class. Yes, sir. Thank you, Okay, sir. see you next time. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.